نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہے اور اس معلوم دھرتی کے اوپر 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والے 3000 سے زیادہ زبانوں میں گفتگو کرنے والے، ادیب بن کے لکھنے والے، خطیب بن کے بولنے والے، سامع بن کے سننے والوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں۔ 4200 سے زیادہ گروہ اور مذہب ان کے ہوتے ہوئے اگر میرے رب نے مجھے میرے محبوب کا امتی بنایا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں آج تک جس بھی شخص کو ملا ہوں کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس انسان کے دل میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیکھی ہے۔ نام لیتا ہوں تو اس کی زبان پہ درود آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کسی بھی ادا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پلکیں جھک جاتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کی محبت اتنی خوبصورت ہے تو پھر لوگوں کو تانے دینا اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں منکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پہ خوشی میں شریک لوگوں کو شریکہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے، ان کو ایسے ہو رہا ہے، یہ ایک گھٹیا سوکیانہ عام بازاری زبان تو ہو سکتی ہے مگر سمجھداری کا لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ میں آج کی اس ملاقات میں رات کے اس وقت اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اپنے ہو کے بھی خود کو بیگانہ باور کرواتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ پوری دنیا میں مجھے جب ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ کی آمد پہ خوشی نہ ہو، تو پھر یہ ڈھڈورا پیٹنا کہ سب کو خوشی ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن جو ابلیس ہوگا، یاد رکھیے، گالی کو، مندہ بولنے کو، گھٹیا الفاظ کو، تانوں تنوڑوں کو، تشنیع کو اگر کسی پتے پہ ارسال کیا جائے، سینڈ کیا جائے، اور وہ آدمی اس کا مستحق نہ ہو یا پھر وہ اس جملے کو قبول نہ کرے، تو بھیجا ہوا ٹی سی ایس بھی اسی ایڈریس پہ واپس آتا ہے جب لینے والا انکار کر دے جہاں سے اسے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ محرم چڑھتا ہے تو تب بھی جن کو ممبر و محراب ملا ہے، یہ مائک ملا ہے، یہ ذمہ داری ہے، جو بھی لفظ بولو گے تول کے بولو، وگرنہ جب یہ تولے گئے تو پھر یہ گلے کا پھندا بنیں گے۔ ربیع الاول آتا ہے، میرے دوستوں کو شاید کوئی اور موضوع ہی نہیں ملتا میرے محبوب کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھ کے، سوائے گالیوں کے، الزامات کے، تانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو گزارش کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ اپنی عوام میں
چند ٹکوں کی خاطر، واہ واہ کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر، بلے بلے کہلوانے کی خاطر یہ بولتے ہیں نا. آپ نے تو شاید ان کے پاس کبھی بیٹھ کے بھی نہ دیکھا ہو. میں ننیالی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر اور ددیالی طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر، یارانے اور دوستانے میں شیعہ مکتبہ فکر کی بہت قربتوں کے بعد 1999 میں جب اہل حدیث جن کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور تھیں ان میں جب آیا، 99 میں، 90 میں، 91 میں، 92 میں، 93 میں، 94 میں، اتنے سالوں کے کسی بھی ہفتے میں سوائے جمعے کے دن، کیونکہ چھٹی ہوتی تھی، باقی کوئی دن ایسا نہیں جب ان لوگوں کے بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اور طالب علموں کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت، آپ کی خصال، عادات طیبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ حدیث نبوی پڑھتے دیکھا جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے. انہی کو بولا جائے کہ ان کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں تو پھر آپ نے انصاف نہیں کرا. میرے بھائی، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو مجھے اس کی بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. میں دعائیں دیتا ہوں، اور یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی کہ جب طائف سے پتھر مار کے نکالا گیا، انہیں جنت کی طرف بلانے گئے تھے، گالیاں دی گئیں، اور بدن الطف کو جب لو لہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ محبوب ان سنگ دلوں کو انہی پہاڑوں میں پیس کے نہ رکھ دیا جائے، تو میرے محبوب نے ان دشمنوں کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو میری قدر کرتے. اللہ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کو ہدایت عطا فرما دے. اس لیے آج کی گزارشات خالصتاً محبت کی بنیاد پہ، حقیقت کو ذرا دیکھیے، پرکھیے. بے شک جتنی مرضی دور رہیے، دور بیٹھیے، پراپوگنڈے سنیے، حرج کوئی نہیں. کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا، سب سے خوبصورت انسان کو مذمم کہا گیا، سب سے زیادہ خان وادہ اور نسل رکھنے والے کو ابتر اور بے نسلہ بولا گیا. جس نے انتر منتر شوشکنتر کے گلے کاٹے تھے اسے سب سے بڑا جادوگر کہا گیا. کائنات کے سب سے عقل مند انسان کو دیوانہ، پگلا اور مجنوں کہا گیا. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. میرے مسلک نے سہ کے دکھایا ہے، برداشت کر کے دکھایا ہے. تیری سب سچی جھوٹی لگی لگائی بجھائی اتار، جو کچھ بھی تیرے من میں آیا تو بولا. لیکن الحمدللہ سٹیج کے اوپر بھی 20 سے زیادہ برس بیت چکے، لیکن کبھی ہزاروں گالیاں دینے والے کو بھی جواب میں ایک گالی نہیں دی. اللہ کا شکر، یہ مالک کا احسان ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت ہے جسے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. آج کی دعوت یہ ہے، آپ کو محبوب کی آمد کی خوشی ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں. لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو، مقصد آمد کو، اس پہ بھی ذرا خوشی کر کے دکھا. آغاز کرتا ہوں، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے والے، غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کہ ماموں جی بیٹا ہویا ہے تے ماشاءاللہ ہی جڑے میرے لو فری آن گے، خسریاں دی فیس میں دواں گا، لوری میرے والوں. لیکن پتہ کر تیرے محبوب نے پیدا ہونے والے بچے کو، میرے نبی کی سیرت یہ ہے، ہمیشہ 4 تحفے دیے ہیں. تو نے منڈا پنڈ میں، قرب و جوار میں جس گھر میں خوشی ہوئی 4 تحفے لے کے گیا. ہمارے ہاں چھوٹی جرابیں لے لی جاتی ہیں، کئی سیٹ، پجامے کچھیاں خرید لی جاتی ہیں کہ بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، گفٹ کرنا ہے. فراقیں لے لی جاتی ہیں.
जीरो साइज बेबी सूट खरीद लिए जाते हैं, झूले ले लिए जाते हैं, साइकिलें खरीद ली जाती हैं, छनकने तक ले लेते हैं, और जिनमें रेड़े बना के मां बाप ने बच्चों को उठाने की बजाय धकेलना होता है वो भी खरीद के दे देते हैं। लेकिन क्या मजाल जो किसी महबूब के कलमा पढ़ने वाले ने इस बच्चे को वो 4 तोहफे दिए हों जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को पैदाइश के मौके पे उनके घर वालों के लिए उस बच्चे के लिए लेके जाता था। जी पता है किसी को तो जरा मजलिस में से इशारा कर दे जी आप ये 4 तोहफे देते थे। मुबासे सब कर लेते हैं, मुनाजरे सभी कर लेते हैं, लड़ सभी लेते हैं, बातें बना लेते हैं, मुनकिर व इबलीस व गुस्ताख के फतवे जड़ने, ये माशाल्लाह जुबानें इसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन गुंग हो जाती हैं जुबानें कि जब सीरत की तर्ज अमल आती है। आम तो आम, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर उलमा, मिंबरो मेहराब के वारिस, मेरे पैगंबर की मीरास का दावा करने वाले किसी के घर जाकर के नए बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो 4 गिफ्ट नहीं दे सकते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। 4 तोहफे सुन, आज घर ले जा। तेरे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में, टाउन में जब किसी के यहां किसी बच्चे की विलादत हो तो इन 4 तोहफों के साथ खातिर और तवाज़ो करना, मेरा रब तुझे पैगंबर की सीरत का हुस्न अता फरमा देगा। पहला तोहफा, आप कहा करते थे बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि ये जो तुझे बेटा या बेटी मिला है ना, ये मौहूब है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, अल्लाह की अता है, रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। ये जो दिया है ना ये अल्लाह दिता है, ये पीरा दिता फकीरा दिता नहीं है। अब लड़ना शुरू कर दे, गालियां दे, औलिया का गुस्ताख बोल, तेरे मन में जो है, जो बर्तन में है वही बाहर आना है, मुझे इल्म है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी नबी करने वाले, इश्क के दावे करने वाले और दम दम पे दरूद के वो दम भरने वाले, जब पैगंबर की कोई सीरत और बात और इल्म और अमल और आपकी हदीस आती है, सांप सूंघ जाता है। छोड़ो जी, आती नहीं होती, अगर आती हो तो शायद इस तरह की बातें ना हो। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये जो रब ने बेटा दिया है ना, बेटी दी है, अल्लाह इसके लिए आसमानों से भी बरकत नाजिल कर दे, जमीनों से भी बरकत नाजिल कर दे। तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में, तेरी आल में, तेरी औलाद में, तेरी नस्ल में अल्लाह चारों तरफ बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मुझे बताइए, ये तोहफा मोहम्मद रसूल सल्लम का दिया हुआ जब आप किसी बेटे और बेटी के लिए लेकर के जाएंगे तो क्या उसके घर बरकतों की कमी होगी? अगर ईमान हो कि महबूब मुबारक हैं, उनका कदम मुबारक है, जात मुबारक है, सर के बाल मुबारक हैं, पेशानी मुबारक है, चेहरा मुबारक है, आपकी जुबान मुबारक है, हाथ जिस्म आपका बदने अल्तफ एक एक अंग मुबारक है। और बाबा जी बुल्ले शाह ऐसे नहीं कह गए कि एक अख दा मुल 1.25 लाख बुल्लिया, पूरा यार तोला मुल की बंसी। मेरे महबूब ने जिस बच्चे को अपनी आंख से देखा, कितना मोहब्बत भरा तोहफा दिया, और लफ्ज भी को मुश्किल नहीं थे, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। लेकिन क्या मजाल के उम्मती को याद हुए हों, गाने याद कर लेगा, ढोले माइये पढ़ लेगा, मुश्किल से मुश्किल इबारतें रट्टे लगा लेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा तो ये तोहफा नहीं देगा। दूसरा तोहफा, वरुज़िक़्त बिर्रा, अल्लाह तेरे बेटे और बेटी को मालिक नेक बना दे, अच्छा बना दे, भले मांस बना दे, अल्लाह इसको तेरा फर्मा बरदार बना दे, नेकोकार बना दे, मानने वाला बना दे, तस्लीम करने वाला बना दे, रब से नाफरमानियों के वायरस से महफूज फरमाए। हजरात वक्त के पैगंबर की जुबान से, रहमतुल लिल आलमीन की जुबान से निकले हुए ये बोल, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। पूरी दुनिया में कोई एक भी मां बाप चाहता है कि मेरी औलाद नाफरमान हो?
लेकिन बच्चे की पैदाइश पे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके, हिजड़ों को बुला के, खुसरों को नचा के, ख्वाजा सरा बुला के, ढोलकियां बजा के, लोरियां दिला के, उनके हाथ से वो बोलियां बुलवा के, और फिर जो है वो नित जमाने की अपनी घड़ी हुई रीतें रिवायतें पेश करके उम्मीद करता है कि कल को बच्चा तेरी मानेगा। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। भुलाई ना सीरत खुशी पे। तीसरा तोहफा व बलगा अशुद्धा, अल्लाह जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, जोर तो कोई नहीं, लेकिन मेरी दुआ है, ये दुआ तोहफा है, ये फूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, ये मेरे पैगंबर की सीरत है। आका कह रहे हैं कि इसको अल्लाह ताला सेहत भी दे, उम्र भी दे, जवानियां भी दे, इसके हड्ड गड्ढ बने, इसका सीना चौड़ा चकला हो, इसके डोले बने, माशाल्लाह बारोब जवान बने, और ये जवानियां माने, और तू इसको देखे और तू उससे खुशियां महसूस करे। अल्लाह तेरी औलाद को जवानियों से, जवानी भरी जिंदगी और दौलत से, फिर आगे बीवी बच्चों से अल्लाह ताला इसको जो है वो नवाजे, और तू इस खुशियों को देख देख के खुश हो। वह बलगा अशुद्धा व रोज़िक़्ता बिर्रा के बाद वह बलगा अशुद्धा, और फिर चौथा तोहफा व शकर तलवाहिब, जिस रब ने ये मुफ्त में दिया है तो शुक्र करे, शुक्राने में इसकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करे, इसकी तरबियत अच्छी करे कि चलता हुआ बाजार में भी लोग देख के कहें किसे चंगे मां पुत्र दा जो है, चंगे मां प्यो दा पुत्र है और अच्छी नस्ल का है। ये तेरे लिए इस दुनिया में वालिदैन के लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि तू औलाद बने, नेकोकार बने, तुझे जवानी मिले तो तेरी जवानी के अंदर वो मस्तानी नहीं हो, आवारगी नहीं हो, दीवानगी नहीं हो कि जिसके नतीजे में गालियां हो, वालिदैन के लिए शर्मिंदगी हो और वो सर उठाने के काबिल नहीं हो। बेटी को जवानी मिले और जवानी में मस्तानी हो के मां बाप का घर छोड़ के रुसवा करके अदालतों में निकाह पढ़वाती फिरे, जिना और सिफा के अड्डे खोलती फिरे। नहीं 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 नहीं, वह शकरतल वाहिब, तुझे रब इस नेमत के ऊपर इसकी ऐसी तरबियत करने की तौफीक दे कि जो भी देखे, जो भी सुने तो कहे खानदानी है, नस्ली है, किसी नेक मां बाप की बच्ची है, बच्चा है। हजरात, ये तोहफे अगर मां बाप को रब ने दिए, बच्चों के लिए दिए, और बच्चों को पता हो कि मेरे पैदा होने पे ट्रांसजेंडर को नहीं नचाया गया, हिजड़े नहीं लाए गए, खुसरे नहीं लाए गए, ख्वाजा सरा नहीं आए, और मेरे साथ ये वो नहीं हुआ, तो फिर मेरे भाई तुझे भी इदराक और एहसास होगा कि मुझे मदीने वाली सरकार ने मदीने से 4 तोहफे भेजे थे, और वही मोहल्ले वाले, गांव वाले रिश्तेदार लेकर के आए थे, और वो तेरे पास, तेरे घर की 4 दीवारी पे भी सलामत हूं और तुझे याद भी हूं, ताकि वो तोहफे तो दूसरों को दे सके। लेकिन क्या करूं, जवान को जवानी में मोहब्बत बड़ी है, इश्क बहुत है, मगर सारा मनफी जा रहा है। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। अगले साल जिंदगी रहे, आप भी हों, मैं भी हूं, जलसे में यहां मेरी तकरीर नहीं हो, बल्कि आप अपना सबक सुनाएं और मैं बैठ के यहां सुनूं कि ये आज के नौजवान ने 4 तोहफे, 4 गिफ्ट जो किसी की पैदाइश पे देने हैं, सीरत कॉन्फ्रेंस से मुतासर होके मोहब्बत भरे लबो लहजे में महबूब की सीरत पे और हदीस पे अमल किया था। अल्लाह की कसम, इस कॉन्फ्रेंस की कीमत वापस हो जाए, मुल पै जाए। लेकिन मैं ना उम्मीद भी नहीं हूं और उम्मीद भी लगती नहीं है। 100 साल, 60 70 साल, 50 साल जलसे सुनते हो गए, और कभी कह दें कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुना दो, मौलवी सारे चंगा बोल गए ने, लेकिन पुत मैनू नहीं आउंदी। ये प्यार है तेरा? राही सुना देगा, किसी मलका तरन्नुम के तज़किरे कर देगा, माइक आगे करे, कोई भी किसी भी एंकर पर्सन का माइक आ जाए, जी कुछ सुनाओ, तो फौरी तौर पे बहुत कुछ ये सुना लेता है, लेकिन नहीं सुनाता तो कुरान नहीं सुना सकता, नहीं सुना सकता तो मुस्तफा का फरमान नहीं सुना सकता। भाई, ये दूसरी चीज, आमद की खुशी है, मुबारक हो, आपको तो डबल ट्रिपल है, चले माना हमको नहीं। पैदाइश के बाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छा नाम रखना और घटिया नाम ना लेना, ये तेरे पैगंबर की सीरत है। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब,
छोटे होते हुए बच्चे का कसूर नहीं, किसी का नाम कालू, किसी का मोटी टींडा, किसी को कद्दू, किसी को माशाल्लाह आलू, किसी को पालक, किसी को पेठा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये तुझे जेब नहीं देता। तेरे मुंडे पिंड में अगर किसी का नाम टेढ़ा है तो तूने पैगंबर की सीरत को सुना भी नहीं, पढ़ा नहीं, बस आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा है। अल्लाह के लिए जरा सोच, तेरे पैगंबर की सीरत, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। मेरे महबूब की एक बीवी ने आका की दूसरी बीवी को सिर्फ इशारतन कह के साथ एक लफ्ज बोला था, समझ गए होंगे, कद उनका छोटा था। अगर मैं प्योर में उस अरबी लफ्ज का तर्जमा करूं तो यह बनता है कि जा नहीं गिठिए। ये उमूमी हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गलियों में चलता है। किसी का कद लंबा हो जाए, जा नहीं तू रही नहीं किते पौड़ी, जाओ खंबिया। थोड़ा सा छोटा हो जाए तो फिर गिट्ठा, कौडू, पता नहीं क्या क्या। कुरान ने क्या कहा, वही ने क्या कहा, तेरे मुस्तफा ने क्या कहा, वही लुल्ली कुल्ली होमजा तिल्लुमजा। हाथ से इशारा कर या आंख से इशारा कर या जुबान से बोल के किसी का उलट नाम ले या उसके बारे में कोई घटिया बोल गाली दे या ऐसा कुछ कर जिसके अंदर उस बंदे की अपनी कोई हिम्मत नहीं। अल्लाह ने मुझे छोटा बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे भाई को रब ने लंबा कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं, वो बेचारा क्या कर सकता है। अल्लाह ने किसी को मोटा बना दिया, किसी को बारीक बना दिया, ये रब की तख्लीक है, अल्लाह को अच्छा लगता है। अब तू उसके ऊपर एतराज कर रहा है तो तेरी पैगंबर की सीरत में ये बात थी ही नहीं। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। अगर तेरे मोहल्ले से, तेरे घर से ये ताने, ये तशनी, ये निकनेम और गलत मलत जो है उल्ट पुल्ट नाम रखे हुए अगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बदल लेते हैं। मैं एक दुकान पे गया तो एक दुकान का मालिक एक बच्चे को कह रहा था, मुल्ला गल सुनी, मैंने जाके जब ऑर्डर लगाया, काम था एक, मैं क्या सूफी, कहता कौन सूफी, मैं क्या तू, कहने लगा मैनू क्यों किया ही, मैं क्या इस वजह तू कि तेरी दाढ़ी है, कहता मेरी तो है नहीं, मैं तो क्लीन शेव हां। मैं क्या तेरे अंदर है ओदी बाहर है, बस फर्क है इन्ना है। बड़ा गुस्सा किया। मैं क्या होर तेनू की मोना कवा, छिलिया लेला आखा। अगर तुझे ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते तो पैगंबर की सुन्नत की वजह से जो नाम बिगाड़ के बोल रहा है, आज के बाद जरा ख्याल से बोला कर। वो जी मेरा मातहत है, आपको क्या, ठीक है तू बॉस है, वो तेरे तहत काम करता है, लेकिन उसे उसके नाम से पुकार, उसे अच्छा लगेगा, उसे इज्जत दे, वो तुझे भी इज्जत देगा। वगरना जो होता है वो दुनिया को इल्म है। अल्लाह के लिए पैगंबर की सीरत में किसी जगह मेरे महबूब ने किसी का नाम प्यार से मजीद अच्छा करके तो बोला है। सैयदा आयशा पूरा नाम भी आप ले सकते थे, लेकिन क्या कहा करते थे तरकीम से, या आयश, या हुमैरा। क्यों कहते थे हुमैरा, क्यों कहते थे, गुस्से से, नफरत से, प्यार से कहा करते थे, क्योंकि सैयदा का रंग जो था वो पिंकिश था और गुलाबी था। किसी की खूबी, किसी की भलाई, किसी की अच्छाई, किसी की उम्दगी। आप तो किसी गैर के बेटे को भी आवाज देते थे तो या गुलाम हो मेरे पुत्र, हो मेरे बच्चे, ओ लाडले। और यहां हम बाप बच्चे को गाली के बगैर नहीं बोल रहा, शौहर बीवी को गाली के बगैर नहीं, बीवी शौहर को गाली के बगैर नहीं है। दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनों मुहिब हैं, दोनों आशिक। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे महबूब अपने घर के अंदर कुत्ता हो तो वही नहीं आती। और तूने मैंने कितने कुत्ते पाल रखे हैं अपने दिल में, और कहते हैं कि ये अल्लाह का घर है। जनाब नफरत के कुत्ते लोगों को काटते हैं, कीने, बुग़्ज़, हसद, क्या कुछ नहीं। कभी दिल को साफ करके सोए कि रहमत के फरिश्ते आए, मोहब्बत आए। तेरे मेरे घर के अंदर दुनिया जहान की गंदगी और गिलाजत झाड़ू क्या करेंगे, इतर छिड़के हुए क्या करेंगे।
अगर वो गंदगियां नहीं निकली, वो बुत नहीं निकले जिनको 21 साल मेरे महबूब ने बैतुल्ला के बुतों को नहीं तोड़ा, पहले दिलों से बुत निकाले, बिरादरी का बुत। कितना बड़ा बुत बना के बिठाया हुआ है। और हम सीरत पे मेरे महबूब ने तो सैयदा ज़ैनब की शादी जनाब जैद जैसे एक गुलाम से कर दी थी, लेकिन तेरे मेरे अंदर बिरादरी का बुत। हां, बेटी भागती है, भाग जाए, अदालत में जाके निकाह करती है, कर ले। नहीं भाजी, मैं बाहर नहीं जे करना। असी जट हुन्ने, असी राई हुन्ने, असी खान हुन्ने, असी राणे हुन्ने, असी चौधरी हुन्ने, असी फलान हुन्ने, एक कमी जाता ये फलान। ये तेरे मेरे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तेरे पैगंबर की सीरत का रंग ये है। उस रंग में कभी अपने आप को रंग कि आपने जात पात को मेयार नहीं बनाया, तकवे को मेयार बनाया, तकवे को मेयार बनाया। हजरात आगे बढ़िए। हर घर में गमी लिखी है, आती है, मौत आती है। क्या तेरे मेरे घर में आमद मुस्तफा सिर्फ अंगूठे चूमने तलक, आंखों पे लगाने तलक, आपकी महफिल सजाने तलक, इसी हद तलक है आमद? नहीं। पता कर, क्या तू सकरात के लम्हात में अपने किसी रिश्तेदार को कलमा पढ़ा के कहता है कलमा शहादत? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। जब चारपाई उठाएंगे फिर सारे हाजिरी लगवाने के लिए कलमा शहादत बोलते हैं। सो लेट, तेरे पैगंबर की सीरत में चारपाई उठाते हुए कलमा शहादत नहीं है। सकरात के लम्हात में हुक्म है, लकिनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब जब इस हालत में थे, सैयद आयशा फरमाती हैं, मैंने अपने आका और मुर्शिद को सुना, आप कलमा पढ़ रहे हैं और साथ में कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति लसकरात। इतनी बड़ी हस्ती और जात भी सकरात के लम्हात में कलमा पढ़ी और साथ में कह रही है रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत। मौत की तलखियों से ऐ मेरे रब, तेरे अलावा बचा कोई नहीं सकता, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा। लेकिन नहीं बोलेगा ये, उस वक्त यासीन पढ़वा लेगा। अगर वफात हो गई है तो सुन्नत यह है कि सुन्नत के मुताबिक अपने करीबी को गुस्ल दे, शौहर बीवी को गुस्ल दे। है तेरे पास ये सुन्नत, तेरे नबी की सीरत? तेरे मेरे पास तो मसला ही ये है कि बीवी फौत हो जाए तो फौरी तलाक हो जाती है। शौहर चेहरा नहीं दे सकता, शौहर चारपाही को कंधा नहीं दे सकता, शौहर जो है वो ये नहीं कर सकता, वो उसे कब्र में नहीं उतार सकता। और तेरे महबूब 27 सफर को जो वो है आखिरी बयान है आपके, आप घर आए हैं और सैयदा ने फरमाया है वाह रासा महबूब आज सर बड़ा दुख रहा है, हाय मेरा सर गया। आका ने क्या कहा? बलाना वाह रासा, मेरी ऐश मेरी जिंदगी, आज मुझे कितना दर्द है सर में, अगर आपको पता चल जाए तो आप अपना दर्द भूल जाएं। फिर मेरे महबूब ने मिजाह फरमाया, मोहब्बत फरमाई। और पैगंबर मिजाह में भी बोले, मोहब्बत में भी बोले तो हक बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कभी इस मोहब्बत को भी ले, आका ने बड़े प्यार से बोला मा दर्रा की लो मित्ती कबली, हो मेरी अहलिया, हो मेरी बीवी, हो मेरी जिंदगी, हो मेरी ऐश, मेरी हुमैरा, ये दर्द सर है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत आ जाएगी। मा दर्रा के लो मित्ती कबली, अगर मौत आ भी गई तो तेरा क्या नुकसान होगा? तू मुझसे पहले फौत हो जाए। लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। तेरी जिंदगी में अल्लाह तब्दीली लाए, अल्लाह सीरत के रंग दे, अल्लाह तुझे गालियों से फुर्सत दे, अल्लाह तुझे नफरतों से, कीनों से, उम्मतियों के बनाए हुए उसूलों और जाब्तों से हटके कभी पैगंबर के दिए हुए जाब्ते पे खुश होने की तौफीक दे। तेरे माथे की और जबीन की सलवटें अल्लाह कभी इनको मोहब्बत वाली कर दे और कभी तेरे चेहरे पे खुशी आए ये जुमला सुन के, मा दर्रा के लौ मित्ती कबली लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बीवी होने के नाते मैं खुद शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। याद रहे कि किसी भी औरत का सबसे बड़ा पर्दा सतर उसका शौहर होता है, भाई नहीं होता, बाप नहीं होता, बेटे नहीं होते, हत्ता के बेटियां भी नहीं होती। मां का पर्दा है एक, पैगंबर ने सिखाया। और पैगंबर की बेटी ने खुद कहा था अली मुझे गुस्ल खुद देना। जिनकी तरबियत में पली थी बोल भी उन्हीं के थे, सीरत भी उन्हीं की थी, अदा भी उन्हीं की थी। सुम्मा कफनतु की, तुझे कफन भी अपने हाथों से पहनाऊं। सुम्मा सल्लैतु अलैकी,
मेरी ऐश फिर तेरा जनाजा भी मैं पढ़ाऊं। करो तैयारी। जिन्हां दे विआह होए जे जरा एक बारी चेहरे ते दिसन डे ने हाथ विखाओ हां जरा, जिन्हां दे होए ने बाकियां लई दुआ करां अल्लाह ताला। शर्मीले मुंडिओ की गल है? जिन्हां ने नहीं चुकिया ते होए ने ना होया वर्गा या तंग जे, दुआ कर देने कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात सीधे कर देगा। एडा भी दिल छोटा नहीं करो। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। करो खाला नाल वादा, अल्लाह ज सीरत कॉन्फ्रेंस सुनन आए हैं ते इंशाअल्लाह जनाजे दियां दुआवां याद करांगे ते जे साडी बीवी साडे तो पहले टुर गई तो जनाजा आप पढ़ावांगे। मडो मुड बनो जरा ढिली ढिली इंशाअल्लाह दे। जरा उच्ची कहो खंगूरे मार के माशाअल्लाह। खुशी होन डई है ना, पहले टुरेगी। तुहाडे लिए भी दुआ करने, अल्लाह कोई और बंदोबस्त फरमाए जी। मैंने ना एक प्रोग्राम के आखिर में दुआ कर दी उन लोगों के लिए जिन्होंने रंडवे कहीदा, तो यकीन करो गल लग के किन्नी देर रोंदा रहा, कहंदा जी इन्ने साल तू रंडवा अज तक मेरे बारे ने किसी दुआ नहीं की, पहले हो तुसी जिन्होंने की है। तो मेरे भाई मेरा क्या जाता है, मेरे महबूब की सीरत ही ऐसी है। सुम्मा सल्लैतु अलैकी, तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊं। सुम्मा दफनतु की, अपने हाथों से मैं कब्र में उतार के तदफीन भी खुद करूं। यह है तेरे पैगंबर की सीरत। मौलवी को फतवा लैन टुर जा, 3400 तेनू जेड़ियां ना उत्थे फकाहतां समझाएगा, लेकिन की मजाल जिस हदीस नू सामने रख के कवे कि नहीं वो तेरी है, वो तेरी है, वो तेरी है। विरासत में हकदार जाके मसला पूछो जी, हाँ हाँ तेरा हिस्सा बन गया, उमें तलाक हो गई है। अल्लाह के लिए कुछ कीजिए। ये औरत शौहर फौत हो गया है, नहीं 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 तलाक हो गई, फारग हो गई, और ये बेवा किसकी है, ये वारिस किसकी है? इसको हक जो सीरत ने दिए है कैसे छीन रहा है? आगे चलिए जरा पता कर। अगर मोहब्बत है ना, तेरी मोहब्बत पे मुझे कोई एतराज नहीं, तू जो मर्जी कह ले, तुझे छुट्टी है। तेरी घुट्टी ऐसी है, तेरी तरबियत ऐसी है, तेरी मजबूरियां हैं, इसके बगैर तेरी तकरीर नहीं सजेगी, इसके बगैर तेरा बयान बयान नहीं माना जाएगा, वायरल नहीं होगा, लोग बल्ले बल्ले नहीं करेंगे। तेरी मजबूरियां हैं कि तुझे दाद भी इस पे मिलनी है, वेल भी इस पे मिलनी है। लेकिन मुझे मेरे मुर्शिदों ने ऐसा नहीं सिखाया, मेरे मुर्शिदों ने गाली नहीं सिखाई, सिर्फ इल्जाम नहीं सिखाया। मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। बता अपनी कौम को सुन्नत के मुताबिक। कितनी खुशी होती है जब मैंने पहली दफा इस्तंजा करते हुए, बेशक उम्र गुजर गई हो, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम ने उस कौम को, जिस कौम के पास पहाड़ थे, पत्थर थे, कैसे बताया कि इस्तंजा करना है तो कितने पत्थर कितने ढेले इस्तेमाल करने हैं, कैसे सीरत का रंग चढ़ाया। पानी मिल जाए तो फाबिहा जबरदस्त, अगर ये चीजें मुयस्सर हैं तो ठीक, अगर नहीं गोबर का हड्डी का इस्तेमाल नहीं करना। अगले दिन एक नौजवान को मिला, बेचारा बड़ी तकलीफ में और शदीद तकलीफ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा जी एक जगह पेशाब किया है और मैंने वो वटवानी के तौर पे जो चीज इस्तेमाल की है वो कोई ठिकरी थी, मैं कर बैठा हूं, उसी से ये जो मुझे तकलीफ है। बड़े सारे इलाज करवाए, आराम नहीं आ रहा, पीप पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो तेरे महबूब ने बड़े बड़े तहफ्फुजात भी सिखाए थे, दुआ सिखाई थी। एक घर गए जनाब, आए बहुत बुरी हालत है, दम कर दें, इमरजेंसी है, फौरी आ जाएं। गए, क्या हुआ है? ये जी वाशरूम गई है तो वापस निकली है तो यह हालत है, दंदना पईयां ने तो पुट्ठी धर शह नूं तोड़ी जाती है, कुटी जाती है। पूछया बाद च दुआ पढ़ी सी, कहती मौलवी साहब केड़ी दुआ, केड़ी दुआ? जब तुझे नबी के ऊपर इश्क भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सूरत का बयान भी है, नातें भी हैं, बहुत वलवला है, जोश है, घर में मिलाद करवाती है, लेकिन वाशरूम जाते हुए तेरे पैगंबर की सीरत क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस।
उम्मती अगर ये याद कर ले और ले ले तो छोटा तोहफा नहीं है कि अल्लाह मैं तुझे अपने सपुरदारी में देने के लिए अपना बड़ा मान रहा हूं। और यारो जे बारिश हुंदी होवे सिर ते छतरी लै लईए ते ओह भी छिटां तो बचा लैंदी है। नहाउण लग्या जदों पहले हमाम हुंदे सी ना, नाई ने लिखिया हुंदा सी अपना कीमती समान मेरे हवाले कर दो, बाद च ना किया जे। उथे घड़ी फड़ा के ना ते बड़े मुतमैन होईदा सी कि चल यार घड़ी कीमती इहनूं फड़ा छड्डीए, परस इहनूं दित्ता विच पैसे इन्ने ने, ये हुण ख्याल रखेगा। सामणी दुकान खुली होवे ना, नमाज पढ़न जावे हाई साहब तो कहिंदे पुत्र जरा मेरी दुकान ते भी ख्याल रखी, तो मुतमैन हुंदा कि पीछे मैं कह आया। तूने जब रब को कह दिया अल्लाह मैं जिन के इलाके में चला हूं वो शरीर जिन है, शरीर जिन्नात है, और ये उनकी जो है वो गिजा की जगह है, रिहाइश की जगह है, रहने सहने की जगह है। अल्लाह मैं उनकी वादी में चला हूं, अल्लाह मेरे वजूद की, मेरी इज्जत की, मेरी आबरू की, मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाना, अल्लाह तेरे हवाले, तेरी सपुर्द। रब की सपुर्द की हुई चीज कभी जाये नहीं होती। तूने यकीन से कभी सीरत के इस रंग को लिया होता, खुद को इस रंग में रंगा होता, तेरी जिंदगी में हुसन ना होता, आमद का मकसद पूरा ना हो जाता। लेकिन हम तो इतना भी नहीं कर पाए। दायां कदम तेरे महबूब पहले अंदर नहीं रखते थे वाशरूम में, ते आपां नूं जदों चढ़ी हुंदी उस वेले कदी सोचिया भी किहड़ा पैर पहले अगे रखना है। एक नूं मैं कह बेटा, कहंदा मौलवी जी तुसीं हुंदे हो वेले, तुहानूं इन्हां कम्मां दीयां लम्मीਆਂ फिकरां, सानूं ते 24 घंटे काम दा तोना चढ़िया, ते उस वेले सानूं सोचदी है कि असीं किहड़ा पैर पहले रखना है। तो मैं कहा जी फिर जदों आ हालात हुंदे ने ना, फिर उदों भी ना सद्या करो, उदों भी की अल्लाह दी सपुर्द फिर चलण दे जिद्दां चलदा। आओ जी दम कर दो, कुछ कह दो, तवीद दे दो, कोई धागा कर दो, कोई पानी पड़ के दे दो, कोई फूक के दे दो। पहले किया होता, कभी निकलते हुए दायां कदम बाहर रख के गुफरानक पढ़ने की तौफीक हुई? ओ भाजी की करिए, बस नहीं सीखिया, गालां सीख लईयां, मंदा सीख लिया, वन सवनियां बोलियां सीख लियां, नहीं जुबान पे चढ़ी तो पैगंबर की सीरत नहीं चढ़ी, पाकी पलीदी के मसले का पता नहीं। कल सवाल आता है जी एक ईसाई औरत कुरान मांग रही है पढ़ने के लिए, मैंने उसको इस्लाम की दावत दी है, दे दूं? मौलवी ने फतवा दे दिया ना 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 ना, गैर मुस्लिम ने नापाक ने ते पाक कुरान नहीं उन्होंने दईदा। कमलिया किन्नी की देर इस हालात च रहेगा, समझ पता कर। कुरान मजीद ने जो खबर दी है ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये नहीं का सीगा नहीं है जनाब, जरा सरफ ना पढ़, और अगर पढ़ी है तो बेड़ा गर्क नहीं कर, खबर है ये, और खबर में हमेशा सच्चाई होती है, झूठ नहीं होता। अगर ये खबर है और माना यह है कि कुरान को सिर्फ वही छूते हैं जो पाक हैं, तो फिर तेरे रब के कुरान की खबर के अंदर झूठ साबित होता है। जनाब अल्लाह के लिए मुआफ कर दे कुरान को, रहमान को, तेरे रब से बढ़ के सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान से बढ़ के सच्चा कलाम कोई नहीं है। तूने कैसे कह दिया है कि ला यमस्सुहु, कुरान नु सिर्फ पाक लोग छूण, नहीं ते आयत च लिखिया है कि नापाक लोग नहीं छूण। किसने कहा है? खबर है ये इल्लल मुतहहरून, और हु की जमीर कुरान की तरफ नहीं, लोहे महफूज की तरफ है। मुतहहरून से मुराद ये इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। लोहे महफूज को सिर्फ फरिश्तों की अप्रोच है, ये खबर दी गई है, नहीं है किसी और की अप्रोच वहां तक, अल्लाह ने नहीं दी। तो फिर कैसे कर लिया? इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम आएगा, मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई बिठाए कि नहीं बिठाया? तो साडी मसीह ते तो दूजे मसलक दा बंदा वड़ जाए तो धोंदे फिरने तो नहीं। मेरे वीरे इदां दे काम नहीं। कलमा पढ़ने वाले, सब पैगंबर को मानने वाले, खुशियां मनाने वाले हैं, लेकिन खुशी का तकाजा यह है कि मेरे महबूब की सीरत को भी खुशी खुशी ले लीजिए। इसमें कोई है नाराजगी वाली बात? मुताले के लिए, स्टडी के लिए जब आप उसको देंगे नहीं, कोई दूसरा गैर मुस्लिम पढ़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। कितनी दुनिया है जो कुरान मजीद छापती भी है, गैर मुस्लिम है, प्रिंट करती है, गैर मुस्लिम है, दुनिया में बेचती है, भेजती है, गैर मुस्लिम है। और तू यहां अदब के दायरे में रह के ना 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 ना, ना इनको कुरान नहीं देना, तो फिर क्या देना है? उनके हाथ में हीर थमा दें, कुछ और सैफुल मुलूक दे दें, किस्से कहानियां वो किताबें दे दें, कोई नावल डाइजेस्ट दे दें। सबसे पहले तेरे महबूब ने जब वो हबशा की वादी में ये
मक्का से आगे जिद्दा है, जिद्दा में समंदर के दूसरे किनारे पे हबशा है। वहां जब ईसाई थे और जनाब जाफर तैयार से बातचीत हुई थी तो उनको क्या पेश किया था? कुरान। कह सकते थे इनकी तो समाते ही पाक नहीं, ये तो बाब वुजू ही नहीं है, इनको कुरान क्या सुनाऊं? नहीं, कुरान मजीद पेश किया जाएगा, दिया जाएगा। जिस कौम की जो जुबान है उसके तर्जमे में दे, उन्हें कह के पढ़, देख, रब दिल पे लगे हुए जंग उतार देता है। अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से बड़े सारे लोगों को हिदायत दे देता है। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। तेरे महबूब ने निकाह के मौके पे कितनी मोहब्बत है तुझे आका से, फिर जिना क्यों है, सिफा क्यों है? यमाशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जिसको मोहब्बत है, जवानी है, निकाह करे। जिना और सिफा नहीं, ये मेरी उम्मत का वतीरा नहीं है। आज ट्रांसजेंडर कानून क्यों पास करवाया जा रहा है? बिल और एक्ट के ऊपर क्यों मेहनत हो रही है? कि मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जनाब डिमांड है। किसने पैदा किया? आपने और मैंने। कौन है ये कलमा पढ़ने वाले? कौन है उम्मती? बूढ़ा दादा भी उम्मती है, और बूढ़ा उसका बेटा हो चुका है, वो भी उम्मती है। उसके बेटे के सर में भी तौले आ चुके हैं, वो भी उम्मती है। आगे पोता जवान है, वो भी उम्मती है। पड़पोता छोटा बच्चा है, वो भी उम्मती है। ये 4-5 पीढ़ियां इकट्ठी बैठी हैं और शादी है, रात को माशाल्लाह मेहंदी है, और यहां आकर के जिसका टाइम लिया गया है वो अच्छा खासा मर्द था, लेकिन हिजड़े के रूप में मेकअप वगैरह करके, विगे शिगे लगा के, बाल लगा के, बन सवर के जनाने लिबास पहन के उसको प्रमोट इतना किया गया है। लाखों में एक नाइट की बुकिंग हुई है, वेले अलग से हैं माशाल्लाह। बुढ़े बाबे भी नाल उन्होंने फड़ फड़ के हथां च नचदे ते घूमदे ते फिरदे। ये आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा हो रही है ना, ये उसका मकसद पूरा हो रहा है। ये तरबियत करके गए थे तेरे आका। शर्मिंदगी नहीं होती, अफसोस नहीं होता, उस वक्त दीन साइड पे कर दिया जाता है। कल जब मौलवी को निकाह पढ़ाने का वक्त आना है और उसने कहना है हकमार लिखिए, और बेटी ने कह दिया जी मैंने हकमार में उमरा लिखवाना है, लो जी ये केड़ी कोई गल है? शरी निकाह दे विच शरी जेड़ा हकमार लिखो ₹32 यहां आके तू ठुस हो जाता है। जहां मस्जिद को रसीद दे, मस्जिद को ₹10 भी देता है, मौलवी जी रसीद कटिया जे क्यों? ये किते बोतल ना पी जाओ, कहंदा 10 दी केड़ी बोतल आउंदी जेड़ी मैं पीनी है, नहीं तू रसीद कट। ते जेड़े खुसरे ते हिजड़े ते ट्रांसजेंडर ते खाजा सरा ने, इन्हां ते माशाल्लाह 5-5 हज़ार दे नोटां दियां दत्थियां एवें खिलार के सुटदा है, नाल बब 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 करदा है। उतों कहंदा बाबा मां बुढ़े बारी भी मैनू कोई मसला कोई नहींगा। वो अपने पुत्र आए तो जेड़ा छोटा जिहा पोता कल नूं तैयार होण डिया तेरी नर्सरी, ये की कहेगा? क्या बात है, यही मेरा अब्बू कल नूं मिलाद कराउंदा सी, नबी दी खुशी मनाउंदा सी, अज सारियां भुल गए। और रब के लिए डरो यार, अल्लाह के लिए कुछ। इस हमाम में आप भी नंगे हैं, मैं भी नंगा हूं, पूरी कौम नंगी है। कौम की डिमांड है तो ट्रांसजेंडर्स को अलग किया गया, इसी पे बिल और एक्ट बने। क्या कुछ नहीं हो रहा कि एक बंदा अपने बच्चे को पढ़ाता है, 16 साल यूनिवर्सिटियों में धक्के दिलवाता है, फीसें भरता है, डिग्रियां दिलवाता है, मदरसे में भेजता है, हिफज करवाता है, सारा कुछ करवा के इन्नियां सारियां दत्था जदों डिग्रियां दा लैके जांदा है तो चुक के इदां मारदे ने तेरे च सलाहियत ही कोई नहीं। ओए फाइन आर्ट कीता ही नहीं जी, नहीं कीता। फिर तेरे फैसलाबाद दी एक फाइन आर्ट दी बच्ची ओ टिकटॉक करके पूरी दुनिया नू टॉप कर जाए तो फिर बच्चियां ने की कुरान पढ़ना है, तो की हदीस पढ़नी है, तो की सीरत पढ़नी है, तो की सीरत दे रंग च रंगिया जाना। केड़ी जन्नत उन्हां लभनी है, उन्हां फिर उधर ही जाना जिद्दां दी तेरी मार्केट च तू डिमांड पैदा करती है। अल्लाह के लिए सोच चेंज कर, तब्दीली पैदा कर। ये शिकवे नहीं है, ये ताने तनोड़े नहीं है, ये जमीर को झंझोड़ के जगाना चाह रहा हूं कि हमारी मिन हैसुल कौम आदत ऐसी हो गई है, नाम नबी का है, गुलाम सभी का है, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। अखियां किसे होर नाल ते वखियां किसे होर नाल कोई करे ना बीबी तो सारे ताने देणगे जी हरजाई है, बंदा करे ते हरजाई है, 2 नंबर है। नाम नबी का, गुलाम सभी का। गल्लां आका दियां, तौर तरीके गैर मुसलमान दे, यहूदो नसारा के। ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपनी जिंदगी में तब्दीली कर। मैं 7.5 अरब या 8 अरब लोगों को तो नहीं बदल सकता,
मैं कम से कम अपने जुस्से और वजूद और सोच और फिक्र को तो बदल सकता हूं, इसे सीरत के मुताबिक ढाल सकता हूं। जब मार्केट में डिमांड खुसरों की है, हिजड़ों की है, नाचने वालों की है, गुलकारों की है, महपारों की है, फनकारों की है, फिर वहां तेरे मौलवी की क्या हालत होगी। एक निकाह पे गए, निकाह मैंने पढ़ाया तो वो जो रजिस्ट्रार था कहने लगा भाजी अगे तो मैं हुंदा सा कोई निकाह पढ़ाउंदा सा, मैनू कोई 3 4 5 लभ जांदा, चलो बच्चों की रोटी रोजी, मेरा तो और काम ही नहीं, आज निकाह तुसी पढ़ाता है। मैं क्या मैं नहीं लेता, आप ही लेंगे। उनको कहा अच्छी पार्टी थी, सहंदी सी, खांदी पींदी सी। मैं क्या यार इनू करो खिदमत 5-10। लो जी उतू एक परत नू किन्ने दा मिलदा है। मैं क्या जी ला लो साहब परत किन्ने दा लभदा जी। वो जी सिर्फ इन्ने दा। अच्छा जी टैक्स कितना जी? बस इन्ना। इनू तो 500 ही काफी है, 500 काफी है। मैं क्या ठीक है शाबाश। जेड़ा कल मेहंदी ते करन डे से 5-5 हज़ार दे नोट ते अन्ने वाह ते नाल सारा कुछ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਕ ਮਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀ 32 रुपए कर दो ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 500 ही काफी है। ये है तेरी सीरत, ये है तेरी तरीकत, ये है तेरा मजहब, ये है तेरा दीन, ये है तेरा उम्मती होना। नहीं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। डुल्ले बेरा दा की है, वापस पा लो, मोड़ आइए। खुशी गमी में दुख सुख में तेरे महबूब की सीरत में नमाज थी, तेरे यहां नमाज है? नमाज का रिवाज है? क़ियाम में आराम था है, रुकू में खुशू था है, सजदू में खुजू था है, तशहुद के अंदर बड़ी आजजी इनकिसारी थी है। इत्थे तो माशाअल्लाह पहले पढ़ते नहीं, तो जेड़ा पढ़न भी टुट जाए ना वह भी वेंदा रहिंदा गिणदा रहिंदा पखे किन्ने लगे ने। यह कंडीशन है साडी। तो सोच पिछे की चलती हुंदी है, मोबाइल घर रह गया किते बेगम चेक ही ना कर ले। गमे जिंदगी दमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी गमे रम न कर समय गम न खा के, यही है शान कलंदरी, यही है शान पैगंबरी। ये थी तेरे मेरे महबूब की नमाजें फिर तूने देखी नहीं है, तूने कभी पढ़ी नहीं है। तेरे महबूब रोजा रखते थे, अज दे नौजवान दा पिता पानी हो जाता है। सीरत कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ कर लेगा लेकिन रोजा रख। मौलवी जी तुसी एसी गड्डी च बहना, एसी च उतर के एसी कमरे च सौ जाना। मौलवी जी तुसी रख सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किते ढलाई ते काम करना पवे तो रोजा रखना पे, क़यामत की आग तेरे मेरे लिए बराबर है, वो फर्क नहीं करेगी जनाब। रोजा तेरे नबी का हुक्म है, आर्डर है। तू होटल में बैठ के आर्डर दे, बहरा तेरी बात ना सुने, 5 सुना के होना है। वक्त के नबी का लगाया हुआ आर्डर उम्मती पे, अजान के वक्त नमाज के लिए उठे ना गाहकों को तरजीह दे और फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ज़कात दे, ओ जी मेरा फुला मसलक है, मेरे मसलक में ज़कात नहीं है। और रब से डर, तेरे नबी का एक ही दीन एक ही मजहब था। अगर सैयद हो के मेरे महबूब ने ज़कात का निजाम नाफिज करवाया है तो तू कहां से आया है? 100 में से 2.5 रुपए निकाल दे, तेरे लिए पाकीज़ा बन जाएगी तेरी कमाई। हलाली बच्चे हरामी काम नहीं करेंगे। जब 2.5 रुपए मिक्स करके देगा, गरीब का माल खाएगा, फिर याद रख के हराम की कमाई गंदे बर्तन च तो मां साग नहीं पा के देंदी। नाली च थोड़ा जा डोब के खड़ के कहो ना मां नूं कि माई आ साग दी डोई पाई, और डोई जिहड़ी है ना हत्थां ते गुट्टां ते सिटू भी आ की है, पहले भांडा तो साफ लिया। गंदा जिस्म, नजस जिस्म, गंदा माल, और उसमें हम माशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि ये होगा। हज उम्रे के लिए जाते हुए मसला बनता है, करोड़ों लगा के माशाल्लाह कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी यूरोप जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। वो की है जी अल्लाह ने दिता तो फिर बंदा एंजॉय भी ना करे। पता कर कभी ईमान की किस हालत में है, कितना गिर गया है, सिलाब क्यों आते हैं। फिर मुफ्ती कहते हैं नहीं जी अजाब नहीं है। इससे बड़ा और अजाब क्या होगा कि रब मुंह में आया हुआ लुकमा वापस ले ले, छीन ले। पक्की फसलें रब छीन ले, तैयार नस्लें छीन ले, बने बनाए घर रब छीन ले, छते मेरा रब उड़ा के रख दे, बेबस लाचार और आजिज कर दे, लखपति को कखपति कर दे। झटके पे झटके अभी भी कोई नहीं है, अभी भी कोई मसला नहीं है। बिजली का एक झटका लगे ना, वो फ्रिज बंद करी पुत, और मोटर का बटन चुक दे, की होना है वो यार किते साड़ी ना जाना। यहां तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक झटके पे चलता है, रब झटके पे झटका दे रहा है और तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, परवाही कोई नहीं।
रूटीन बन गई है। तेरे महबूब सिर्फ बादल देखते थे तो सीरत यह है, फौरन सब कुछ छोड़ के परेशान होके मुतगय्यर रंग हो जाता, रंग फक हो जाता, और मेरे महबूब आकर के नमाज में खड़े होके रोने गिड़गिड़ाने आजियां करने लगते। असहाब ने पूछा महबूब मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त माहौल बन रहा है, बादल और घटाएं हैं। कहा मेरे सहाबा इन्हीं बादलों को देख के पहली कौमें खुश हुई थी, बाहर निकले थे कि साया हो गया है, अभी बारिश बरसेगी, अल्लाह रहमत करेगा, नहाएंगे। अल्लाह ने उसी बारिश को अजाब की बारिश बना दिया, पत्थर बरसा दिए, रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते हैं। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर हैं, आका की आमद पे बड़े खुश हैं, लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिए आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले जो पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना कोई, या नर्सरी जो लिया के तो लाउंदियां लिया दे दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सेट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल सेट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है। अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। आप जो भी करते हैं, मैं बात को खत्म करूं, जेड़ा भी काम कर दे जे ओदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जे, नलके लाउंदे जे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल सिर्फ इतना है 120 फुट दसिया जाए तो फिर 120 फुट कर दो, रिस्क हलाल है। जे 120 की बजाय 119 फुट करके कहते जे पैसे ले जे 120 फुट दे, आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया जनाब, चला गया है। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंदे जे, ते माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मार जाए तो कहते इन्नी कि ला के सिट दे, बाकी खा लेने। खैर है, सज्जे खब्बे तो नहीं सी ना गई। जनाब दूध बेचते हो जी, मैं दूध बेचता हूं। कौन हो? उम्मती हूं। किन के हो? आका सैयदी मुर्शदी के। क्या बात है, अगे टुरो। आ यार ठंडा क्यों है? वो मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तता तता दुध दिंदियां ते उदां दा फिर उत्ते झाग शाग मारन लई फिर वो हिसाब है 5 किलो चवाई का 4 पिछे रह जाता, तो फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? उन्होंने फिर ठंडा भी तो करना ना, इत्थे लियाउण तक बुलाक बर्फ का पा लिया, हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया है, माशाअल्लाह मेरे घर के बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोग पानी शानी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी, वो बाकी तुहानू मिसालां दा पता है जी, डड्डू तारा जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। साइकिल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध का कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध है लोग पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू ओदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे, असली ते खालस दुध ते मिलावट करन वाले नू 10,000 नकद इनाम, ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं बहुता विके गई। ठीक 5 महीने पहले लोगों तो पैसे लैन दिया सी, यार हवा भरानी है 10 रुपए तो दई, ते 6 महीने बाद मैं टेंड वेखी। मैं कहा भाजी की होया जे, कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहंदा मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहंदा जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बाल बल्ले बल्ले बल्ले। क्या बात है, तेरे नबी ने कहा था मिलावट करके लुकमा दे बच्चों को, न तू मेरा न तेरे बच्चे भले, उनका कसूर नहीं है। जनाब कपड़ा बेचते हो, फैसलाबाद में रहते हो जी, लिखा होता है मीटर दे गज रहा है, ते गज भी वेख्या ते चिब्बा दो पासों मुंह तान। मैं क्या लक नूं की होया? आ कहंदा यार उत्ते पैर आ गया, डूंग च पिया सी, कुब निकल गया किते माड़ा। ते माशाअल्लाह मुंडे ऐसे रखे ने कपड़ा नापण लई, बाजी आओ वेख लो, और बाजी आ भी चंगा जे, ऐदा कर करा के माशाअल्लाह गिरा मार के ते घर जाके वेंदी है भी जेड़ा मैनू 7 मीटर दिता सा, 5 भी नहीं निकलिया। है सीरत च
आमद से बड़ी खुश, अल्लाह के लिए इस कौम की हालत बड़ी खराब है। इसी वजह से अल्लाह ने कौम शुएब को बर्बाद करके रख दिया था। तो पिंड च माशाअल्लाह अल्लाह भला करे, मैं रातां नूं जदों लंघना ना, हुण भी मैं 5-7 पिंडां चों लंघ के आया, हालांकि मेरा रस्ता सीधा ही सी। मैं कहा चलो टाइम हैगा, जांदे जांदे कुछ पढ़ जाइए, वेख जाइए कौम की करदी रात नूं कलमा पढ़न वाले। रबीउल अव्वल दा महीना है, ते जिद्दण लगी ना माशाअल्लाह कोई भी कानफ्रेंस ते सीरत ते कोई मिलाद, उत्थे इन्हां बच्चियां ने माशाअल्लाह मार नहीं होना। ते अक्सर मेजर पिंडां दे विच बच्चे रूढ़ियां ते बैठे सी, बाहर ना पिंडां दे बाहरली साइड ते जिहड़ी सड़क ते रूढ़ियां ने ना, उत्थे कोई किते कोई कमादे, कोई किसे जगह, कोई किसे नुकरे। ओ पुत्र तुहाडा घर बाहर कोई नहीं, ओ यार प्यार है की करिए। मैं मिसाल दिंदा, उन्हां समंदरी तों लंघण डिया सा, डेंगी दा जमाना सी, कच्छा पाया सी, रात 2 बजे आखिरी टाइम मिलिया। जिवें अज वीरे ने कहा ना जी दूजा ते आ जाओ, तो मुड़ के हुण आखिर ते भी कहण डिया सी जी हाले भी रहिंदा कुछ। मैं मुड़िया तो हाले भी कंन नाल मोबाइल ला के उत्थे ही टोरे कड्ढी जावे, पहला पावे। मैं शीशा थले करके इन्नी की गल कही, पुत्र अल्लाह तेरे प्यार च बरकत पावे, जिहदे नाल इस वेले भी प्यार च जागण डिया। कहंदा 1 मिनट होल्ड रखिया जे, मोबाइल थले करके कहंदा मौलवी साहब एक बारी फिर कह दो ना किते। तो मैं वही लफज बोले थे उच्ची, कहंदा आमीन। इन्ना प्यार है ना, रातां नूं पैकेज ला के भी जागना है, ते पैरां ते वरम ते सोच नहीं पैंदे, ते मुसल्ले ते आके 5 मिनट खलोना पै जाए तो नाल ही गशियां पै जांदियां। तहज्जुद साडा की काम है? ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे किथों सिर च पढ़ी? तूने कलमा नहीं पढ़ा, तुझे सीरत का इल्म नहीं है? आ पता कर। तालिब इल्म है जी, मैं तालिब इल्म हूं। डिग्री कैसे ली है? बाजी बाजी ने असाइनमेंटां लिखियां सी, अब्बा अंबा दी पेटी लै गया सी, उस्तादा ने नंबर लाते सी, तो मैं फिर जेड़ा ना जी मिठाई दा डब्बा लै गया सा, ते ओ डिप्टी ने ते निगरान ने एडी कोई निगरानी नगरूनी वाला हिसाब नहीं, तो मैं ना थल्ले ही इधर बुक बन्नी सी, इधर मोबाइल चाया सी, उतो हिसाब किताब ला के मैं लिख आया, नंबर माशाल्लाह पूरे फर्स्ट डिवीजन आ गई है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, तूने जो डिग्री के हासिल करने में नंबरों में झूठ की मिलावट की है, जब तक इसके ऊपर रोटी कमाता रहेगा, हराम खाता रहेगा, हराम खिलाता रहेगा। और तेरे महबूब ने कहा रोएगा, औलादें गलत, बच्चे गलत, नस्लें गलत, बीमारियां, दुख दर्द, आलाम, अस्पतालों में, अलाइड में, सिविल में, जगह जगह धक्का खाएगा, हकीमों को नब्जे पकड़ाएगा, तबीबों की फकीयां फांकेगा, और फिर रोएगा, कहेगा कि मैं इन्ने सालों तो दुआवां मंगण डिया, मेरे मामले मौलाना हल नहीं हो रहे, मौला पता नहीं सुनदा नहीं। कितना सुने? आका ने कहा सी, एक बंदा है मुसाफिर है, सर पर गंदा हाल है, गर्दो गुबार पई है, हाथ चुके ने और दुआ मांग रहा है, या रब्बी कह रहा है। मशरबहु हराम व माकलहु हराम व मलबसहु हराम व गुद्दिया भी हराम। उन्हें कदी हलाल हराम की पहचान की नहीं। फअन्ना युस्तजाबु लहु, ते रब नूं किहड़ियां पईयां ने कि इस पलीत भांडे दे विच इहदीयां दुआवां दे विच इहदे बुक्कां नूं भरदा फिरे ते इहनूं अता करदा फिरे। या तो मां तू गंदी प्लेट च सालन लेके वेख। मेरी बातें तलख जरूर होंगी आज, लेकिन कभी जहर भी करता है कारे तरियाकी। हम सब उम्मती हैं, आका की आमद पे खुश हैं, हम बड़े राजी हैं। अल्लाह के लिए वो काम तो करें ना जो मसलक में इख्तिलाफी नहीं, वो काम तो करें कि जो इत्तेफाकी हैं। उनके ऊपर तो पैगंबर को, अल्लाह को, रब को, रसूल को राजी करने वाले काम करें। अदाओं में, लिट्टू में, बालों में, लिबास में, वजाकता में, चाल ढाल में, वो सब यहूद नसारा वाले। और उम्मीद है कि नबी की उम्मती बन के जन्नत में। याद रखिए, कौसर के जाम पिलाने से पहले पहले भी रब ने दीवारें मार देनी है। वो किसी मसलक के लोग नहीं है, बल्कि ये कहा कि महबूब तेरे बाद तेरी सुन्नतों को, तेरी अदाओं को, तेरी सीरत को छोड़ के इन्होंने मन मर्जी की जिंदगियां शुरू कर ली थी। और फिर महबूब कहेंगे सोहकन सोहका। वो उम्मती उम्मती कहने वाले महबूब ने भी कहना है दफा दूर दफा दूर। तो अल्लाह के लिए अपने आप पे नजर सानी करें, अपने गिरेबान में झांके, खुद को बदलें, अपने बच्चों को, एक घर को, एक यूनिट को तो आप बदल सकते हैं, पूरे पिंड नूं तो बदलना शायद आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन जिस दिन हमने आगाज कर लिया, अपनी जिम्मेदारी ले ली, तो इंशाल्लाह 8 अरब जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मुखलिस होके, दिखावे वाले नहीं और रिया वाले नहीं, धोखे वाले नहीं। जो बोल बोले वो सच वाले हों, और जो बोल बोले वो तोल के दिखाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं, और उस्मान जो है वो गनी बन जाते हैं, और फिर अली हैदर कर्रार बन जाते हैं, फिर जो है वो अशरा मुबशरा बन जाते हैं,
پھر وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن جاتے ہیں جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور محبوب کی بات سن کے مان لی جائے، اتباع کی جائے اور تصدیق حق کی جائے، تو یہی شان صحابہ ہے، یہی شان اہل بیت ہے، اور یہی امتیوں کا وقار ہے، اور یہی پیغمبر کی پیغمبری کا اور ختم نبوت کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اللہ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے حالات پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جی حافظ مجیب الرحمان صاحب کے لیے اولاد نرینہ کی دعا۔ یہ اولاد نرینہ کی ہوندی ہے نر؟ ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کسی بھی بہن بھائی کے لیے جو بھی تیری جناب میں اور تیری دربار میں اچھا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، وہ اولاد عطا فرما دے، نیک عطا فرما دے، صالح عطا فرما دے، فرما بردار عطا فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی اس میٹھے پھل سے محروم نہ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سیرت کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے، پڑھنے، اپنانے کی اللہ التجا کی ہے، احباب سے درخواست کی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے سامعین کو اللہ اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی نصیحتیں ہیں سب سے پہلے اپنے لیے ہیں، پھر اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں۔ اللہ کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی تانا نہیں، تنوڑا نہیں، کوئی تشنیع نہیں۔ اللہ خالصتاً اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے اپنی گرد و غبار کو اتارنے کے لیے۔ اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں پیش کیا ہے۔ اللہ جہاں ہم غلط ہیں صحیح کر دے، اللہ محبوب کے وفادار بنا دے، اللہ ان کے صحیح معنوں میں حبدار بنا دے، اللہ ان کی لاج رکھنے والے، حیا کرنے والے بنا دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر دے۔ اللہ جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دے۔ الہ العالمین یار قدموں میں نہیں رکھیں، اوپر رکھیں، محمد نام لے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے وطن کے اندر جتنی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، میرے مالک سب جو ہیں وہ حل فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امتی ہیں، کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ جیسے بھی ہیں اچھے برے ہیں، اللہ کمی بیشیاں ہیں، فرشتے نہیں انسان ہیں، اللہ ہمیں کمی بیشیوں کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو اور بد عملیوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے، اللہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما۔ الہ العالمین میرے ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ انہیں اچھا جیون ساتھی عطا فرما، عزت اور عفت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ اس دنیا سے لے جانے سے پہلے پہلے اللہ وہ دیار حرم جو ہیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اعتدال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں بد عملی ہے اللہ اس کو اچھے اعمال کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اللہ جو عقیدوں میں کمی بیشی ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دکھا کے اس کی اتباع کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا مکروہ چہرہ ہماری زندگی میں عیاں کر دے اور پھر اس سے اجتناب برتنے اور دور ہونے کی توفیق دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔